Hello student, welcome back to our next class and today's class topic is principle of management. Student, this is a revisionary class for class 12th. आपको previous classes में बताया गया है कि we are going to start a revisionary class और this class is of one class, one chapter, full of review of one chapter in only one class. आपका one class में एक chapter का review होगा, important points जो है that are discussed in the chapter. Okay student, so let's continue our topic, that is प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट वी कम टू नो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स. स्टूडेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? इन लास्ट क्लास वी आल्सो डिस्कस दैट प्रिंसिपल इज अ path, you can say a path or you can say a rules on which the work is going to be done. तो प्रिंसिपल क्या होता है? वो एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है या फिर एक रूल होता है जिसके ऊपर हमारी सारी चीज़ें एक फ्लो में कंडक्ट करती हैं. तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल. Okay student, this is sufficient for principle. What is principle? The path or the way or the rule on which the things are going to be conducted in very smooth manner or in the good manner. So that is a principle. Next one is principle of management. What are the principles of management, student? Now what is the principle of management? So you know the principle means is the path or rule or way on which the things be conducted. And what is management? You know, so means principle of management means कि management work is going done or management work is going smoothly done in the path on which path that path is known as प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जो हमारे मैनेजमेंट का फंक्शन है, जो हमारे मैनेजमेंट का वर्क है, वो जिस पाथ पे चलता है बहुत स्मूथली, बहुत गुड मैनर में, तो दैट पाथ, दैट वे इज नोन एज और दैट रूल एंड रेगुलेशन इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गए होंगे इन शॉर्ट वे. नेक्स्ट इज योर nature of principle of management. So student, what are the nature of principles of management? How principle of management do their work? तो आइए हम लोग देखते हैं just one by one. First one is your in universal applicability. What is the means of universal applicability, student? Universal applicability means कि this function or this principle of management is universally applied. ये हर एक जगह पे अप्लाई होता है. You know the principle, you know the management is परवेसिव इन नेचर. वो परवेसिव नेचर का होता है. सो दैट्स वाई और वो हर एक जगह पे एप्लीकेबल होता है और दैट इज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट हर जगह पे फॉलो होता है, आपकी लाइफ में, आपके वर्किंग प्रोसीजर में, ईच एंड एवरीवेयर. तो यूनिवर्सली ये फॉलो किया जाता है, एप्लीकेबल होता है. तो दैट इज अ नेचर ऑफ योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट दिस पॉइंट इज applicable universally. Next one is your general guideline. General guideline means that is, you know, the principle means what? Principle means guideline. तो ये general guideline होता है general peoples के लिए और the people who are working on the management process, तो उनके लिए ये guideline होता है that do the work on this process only. means कि आपको guideline है, आपको एक path है, आपका एक rule है कि आपको इसी पे work करना है, तो ये general guideline फॉलो किया जाता है स्टूडेंट आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू. आई थिंक स्टूडेंट कि आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वन इज योर formed by practice and experiments. Yes student, what is the means of formed by practices and experiment? It means कि जो भी हमारे principles होते हैं, जो भी हमारे management principles होते हैं, they are formed by experiments, they are formed by practice. जब हम practice करते हैं और our managers do the practice, तो manager जब चीज को practice करेंगे, उस चीज को experience करते हैं काम करने के बाद, then only they फॉर्म द प्रिंसिपल्स. मीन्स कि हमारे मैनेजमेंट टीम ने कई बारी उस प्रोग्राम को, उस प्रोसेस को फॉलो किया एंड आफ्टर फॉलोइंग दैट प्रोसेस he come to know a result कि this is a good result or this is the way on which we or this is the guideline on which we do the work. So work is going to be done in very smooth manner. तो वो हमारे प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस होता है कि जब हम प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके एक्सपीरियंसेस से जो रिजल्ट हमें मिलता है, उस रिजल्ट के ऊपर वी मेक द principles of management. So student, I think कि आपको confirm हो गया होगा. Next is flexible. Yes student, what is flexible? Flexible means when our management or our team going to do the work on principles of management, and if they feel any type of problem, so they can modify that problem or they can modify that principle or they can change that principle also. So that is flexible in nature because principle of management is practice and experiment, basis on practice and experiment. और हम अगर कोई practice, कोई experiment या कोई work करने जाते हैं and
दैट इज नॉट गुड और दैट यू आर स्टक ऑन दैट थिंग, तो हम उसको फ्लेक्सिबली हैं, हम उस प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टूडेंट? मीन्स की योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्क ऑन कॉज ऑल्सो एंड देयर इफेक्ट ऑल्सो। मीन्स की हमें किसी की कॉज पे और किसी भी इफेक्ट पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करना पड़ता है किसी भी कॉज एंड इफेक्ट में, इसलिए कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, आपके नेचर होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। सो वी आर liable to do the work in this condition also. So student की cause and effect relationship आपको समझ में आ गया होगा। Come to move to the next one, that is significance of principle of management. So student आपको nature of management समझ में आ गया होगा, what are the nature of management, कैसे management हमारा जो है वो वर्क करता है। Now come to the significance or characteristic of your मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, आइए हम देखते हैं वन बाय वन। सो नेक्स्ट वन, सो providing managers with useful insight into reality. Yes student, what it means providing managers with useful insight into reality means कि managers ने जो भी चीज़ों को assume किया है, जो भी process उन्होंने बनाया है, तो उस process को हम रियलिटी में अप्लाई करते हैं थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अपने मैनेजमेंट, अपने वर्किंग के अंदर, अपने वर्क प्रोसीजर के अंदर, जो बहुत ही यूजफुल होता है हमारे वर्कर्स के लिए, हमारे पीपल्स के लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क करने के लिए। तो सिग्निफिकेंट ऑफ हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आ जाता है यूजफुल इंसाइट ऑफ इनटू रियलिटी। तो जो रियलिटी में हमने वर्क को फंक्शन किया, जो हमने सोचा था, एज्यूम किया था, जो भी प्लानिंग हमने की थी, जो भी हमने एज्यूम किया था कि इस बेस पे हम काम करेंगे, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं अपने इंटरनल में, अपने वर्कर्स के साथ, एंड दिस इज वेरी यूजफुल टू अस और आवर वर्कर्स। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि दैट प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। नेक्स्ट वन इज योर स्टूडेंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो मीन्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टूडेंट बार बार ये बात आती है, दैट इज योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? इट मीन्स कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वट एवर रिसोर्सेज वी हैव लाइक मनी, प्लांट, बिल्डिंग, ह्यूमन, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज का हम एक ऑप्टिमम लेवल तक, उनके जहाँ तक वो काम दे पाते हैं हमें, जहाँ तक वो अपनी इफेक्टिव वर्क हमें दे पाते हैं, उस इफेक्टिव वर्क तक उनका हम यूज करते हैं। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड दिस इज पॉसिबल बाय द मैनेजमेंट ओनली, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि हम उनके ऊपर काम कर पाते हैं। अब जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क करेंगे तो हमको सारी की सारी चीजें पता होंगी। वी हैव टू कम टू नो ऑल द थिंग्स ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट कि हमें कैसे मैनेज करके अपनी उन सारी रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तक लेकर जाना है। एंड वी कम टू नो दैट हाउ वी डू द गुड एडमिनिस्ट्रेशन और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो ऑन द पीपल और ऑन आर एम्प्लॉयज ऑल्सो। तो हम अपने एम्प्लॉयज पे, अपने पीपल्स पे कैसे एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, वो भी हमें कहाँ से मिल जाता है स्टूडेंट? दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से हमें ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज योर स्टूडेंट साइंटिफिक डिसीजंस। यस स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ साइंटिफिक डिसीजन? तो बेसिकली जो भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं दैट आर वेरी साइंटिफिक, वो बहुत ही साइंटिफिक होते हैं। मीन्स कि व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट्स, व्हेन वी डू द थिंग्स, सो वी कम टू नो द रिजल्ट, और उस रिजल्ट पे, उस कंक्लूजन पे हम अपनी सारे की सारी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं या फिर उनको ऊपर सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। तो दैट्स व्हाई आवर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज साइंटिफिक डिसीजन। हम साइंटिफिकली सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसके जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट पे स्टूडेंट्स हम वर्क करके अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाते हैं। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज योर मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। यस स्टूडेंट, मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट मीन्स स्टूडेंट कि जो भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी हेल्पफुल टू मीट आर चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स और इन्वायरमेंट। मीन्स कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहे होते हैं, हमारे टेक्नोलॉजीज़ में जो भी चेंज हो रहे होते हैं, उन चेंजेस को, टेक्नोलॉजीज़ के, उन इन्वायरमेंट्स की चेंजेस को अप्लाई करने के लिए, अपने
बिजनेस के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होता है आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बिकॉज जब मैनेजर्स उन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं तो दे कम टू नो और दे कम टू अंडरस्टैंड देयर वर्कर्स कि हम वर्कर्स को कैसे समझाएंगे कि ये प्रोसेस और दैट चेंजिंग इज़ वेरी गुड फॉर देयर वर्किंग प्रोसीजर। तो उसके वजह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करते हुए हमारा जो चेंजिंग इन्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय द मैनेजर्स। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये क्लियर आउट हो चुका होगा। नेक्स्ट वन इज योर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। यस स्टूडेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च एजुकेशन? इट मीन्स कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, जब इस पे एक मैनेजर हमारा फंक्शन करता है स्टूडेंट, तो ही कम टू नो ऑल द सर्विसेज, ऑल द रिसर्च एंड ऑल द एजुकेशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो अगर उस पे फंक्शन करते हुए अगर हमारे मैनेजर को कोई चीज़ नहीं आती है या उसको कोई चीज़ कम समझ में आती है तो उसको एजुकेशन मिल जाती है, उसको रिसर्च करता है वो मेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, तो उसकी खुद की एक एडवांसमेंट होती है। ही गेट द ऑल ट्रेनिंग, तो उसकी उस फंक्शन पे, उस मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन पे, उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क करके उसकी खुद की एडवांसमेंट होती है, वो ट्रेनिंग उसको मिलती है, एजुकेशन मिलता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपको नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया होगा। लेट्स कम मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट हियर इज योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो क्या है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और व्हाट इज टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट? आइए हम लोग उसको देखते हैं वन बाय वन, जस्ट हैव अ लुक। तो स्टूडेंट हमारे जो फ्यूल्स थे वो एक माइनिंग इंजीनियर थे, कहाँ पे? फ्रेंच माइनिंग कंपनी में 1860 में, और इनको कहा जाता है क्या? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। स्टूडेंट इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। देयर आर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। मैनेजमेंट बेसिकली उन्हीं प्रिंसिपल्स पे फॉलो होता है, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करता है। सो हैव अ लुक वन बाय वन क्या होते हैं दैट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज योर स्टूडेंट डिवीजन ऑफ वर्क। फ्यूल ने बताया कि यू हैव टू डिवाइड वर्क इन डिफरेंट पार्ट्स। मीन्स कि आपके जो वर्कर हैं, वर्कर को किसी एक वर्कर को आप पूरा का पूरा वर्क लोड दे देंगे तो ही कांट डू दैट वर्क इन एफिशिएंट मैनर, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा वर्क। आपको अगर किसी भी वर्कर से, किसी भी एम्प्लॉय से अपने वर्क को कंप्लीट करवाना है तो आप उस वर्क को पार्टीशन कर दीजिए, पार्ट में डिवाइड करके, छोटे छोटे वर्क्स में डिवाइड करके आप उसको डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को दीजिए और आपका वर्क बहुत ही एफिशिएंट मैनर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे था आपका डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट वन इज योर authority and responsibility. Yes student, what is authority and responsibility? It means authority and responsibilities come together. You can't impose responsibility to anyone without authority and you can't give only authority to the anyone without responsibility, because कि अगर आपने किसी को authority दे दी और responsibility नहीं दी तो वो अपने आप को superior समझने लगेगा और उसके behavior में बहुत ही rude change आ जाएगा। तो दिस इज द स्टडी ऑफ फ्यूल। तो ये फ्यूल की स्टडी थी कि किसी भी के रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डायरेक्ट इम्पोज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी और डायरेक्ट अथॉरिटी आप नहीं दे सकते, बिकॉज अगर आप अथॉरिटी देंगे तो वो रूड बिहेवियर करने लगेगा, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगेगा, इसलिए उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको देनी पड़ेंगी। इट मीन्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी कम हैंड बाय हैंड, एक के साथ एक आपको मिलता ही मिलता है या देना ही पड़ता है। दैट इज अ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिसिप्लिन। यस स्टूडेंट, फ्यूल ने हमारे बताया कि आपको जो भी मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर को कोई भी वर्क कराने के टाइम में फैमिलियर तो होना पड़ता है बट इन डिसिप्लिन मैनर। मीन्स कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की वैल्यू है वो बनी रहे और उसी पे आपका वर्क होना चाहिए। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिसिप्लिन। मीन्स कि आपको एक वर्क को डिसिप्लिन वे में करवाना है। इट मीन्स कि व्हाट यू से टू योर एम्प्लॉयज डू दैट वर्क इन वेरी
इफेक्टिव मैनर, तो वो आपके बहुत इफेक्टिव मैनर में वर्क करके आपको कर दे और बहुत ही डिसिप्लिन वे में आपको वर्क कर दें, तो दैट इज इट मीन्स डिसिप्लिन। नेक्स्ट वन इज योर unity of command. Yes student, what is the means of unity of command? Unity of command, it means कि there is only one boss to give the instruction to that person. It means कि अगर एक person है तो उसको कमांड देने वाला only one boss होना चाहिए. Why? Because in this condition that employee not get confused कि हम किसका काम करें. बट इफ देयर इज अ वन एम्प्लॉय एंड द बॉस इज डिफरेंट, तो डिफरेंट बॉस गिव द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, सो दिस एम्प्लॉय गेट कंफ्यूज कि व्हाट वी डू नाउ. तो इसकी वजह से वी हैव टू चूज द यूनिटी ऑफ कमांड. अगर आपको एम्प्लॉय को किसी भी कमांड देना है तो देयर इज ओनली वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय, आपको उसी को कमांड देना पड़ेगा. दैट्स इज द इफेक्टिव वर्क एक्सपीरियंस. ये आपका इफेक्टिव वर्क करता है आपके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग या मैनेजमेंट के अंदर. सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. व्हाट इज द मीन्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि इफ देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड देयर मोटिव इज वन, सो आपको उस डिफरेंट डिपार्टमेंट के जब मोटिव एक हो तो उनकी प्लान्स भी आपको एक ही करनी पड़ेंगी. मीन्स कि एक ही डायरेक्शन होना चाहिए जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहे हैं. अदरवाइज देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. अगर उसके प्लान्स में अगर डिफरेंस आ जाएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा. तो हमारे जो अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एंड दैट डिपार्टमेंट इज अ सेम प्रोसेस और सेम फंक्शन, तो सेम फंक्शन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक ही प्लान होना चाहिए. ऑन दैट प्लान दे वर्क, तो मैनेजमेंट वहाँ पे एफिशिएंट हो जाता है. सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज योर subordination of individual interest to general interest. What is the means of subordination of individual interest to general interest? इसका means ये हो गया कि जो जनरल पीपल होते हैं या जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर आर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज मोर वैल्यूएबल. मीन्स कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो देयर इज अ वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज मोर देन योर वैल्यू. यानी कि आपका जो आप एम्प्लॉय हैं, आपकी जो वैल्यू है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर वैल्यू. तो इससे क्या होता है, इससे योर एम्प्लॉयज गेट कंट्रोल. उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू इज सुपीरियर, तो वो अपने वैल्यू को अप करने की कोशिश नहीं करेंगे. दे आर इन द कंट्रोल. तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज योर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. यस स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज? फ्यूल ने कहा कि इफ यू वांट टू टेक अ वर्क फ्रॉम योर एम्प्लॉयज और योर वर्कर्स, तो गिव देम अ गुड रेम्यूनरेशन. उनको एक अच्छा रेम्यूनरेशन दीजिए, उनको एक अच्छा पेमेंट दीजिए. इफ दे डूइंग अ वर्क और इफ दे डूइंग अ हार्ड वर्क, तो देयर इज अ मोटिवेशन ऑफ देयर रेम्यूनरेशन और वेजेस और सैलरी. तो उनको जितनी सैलरी आप अच्छा पे करेंगे, जितनी फैसिलिटीज आप उनको पे करेंगे, तो वो उतना ही मोटिवेट होंगे और उतना ही आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करके देंगे. तो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्यूल. तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आ गया होगा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. नेक्स्ट वन इज योर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. यस स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मीन्स टू होल्ड द पावर इन वन हैंड, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर इन डिफरेंट हैंड. तो ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज डन इन योर ऑर्गेनाइजेशन इन अ बैलेंस मैनर. आपको जब जरूरत लगेगी तो यू होल्ड ऑल पावर्स, और आपको जब लगता है कि नहीं देयर इज अ डिफरेंट, ये हमें पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, डिफरेंट लोगों को अथॉरिटी डिवाइड कर देनी चाहिए, तो आप उस डिफरेंट पीपल्स को अथॉरिटी अपनी डिवाइड भी कर सकते हैं. तो दिस इज इन बैलेंस मैनर. ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे कंट्रोल को अपने हाथ में रखें एंड द पीपल्स गेट सफोस्टिकेटेड, तो वो उलझन में महसूस करें और दे थिंक कि दिस एनवायरनमेंट ऑफ वर्किंग इज नॉट गुड. तो आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों करना पड़ता है, बट इन अ बैलेंस मैनर. नेक्स्ट वन इज योर स्टूडेंट स्केलर चेन. यस स्टूडेंट, स्केलर चेन मीन्स व्हाट? स्केलर चेन आपका ऐसे वर्क करता है, इट मीन्स कि आपके सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट के बीच में एक स्केलर चेन होती है. यू कांट क्रॉस द चेन, बट इन अ इमरजेंसी पीरियड आप जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के डिफरेंट डिपार्टमेंट के पीपल्स होते हैं, दे कैन
कम्युनिकेट और दे कैन डू द वर्क टुगेदर, तो वो आपका एक साथ काम कर सकते हैं इन स्केलर चेन। बट आप सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की वैल्यू अपने स्केलर चेन में मेंटेन करके रखेंगे। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज स्केलर चेन। तो आई स्टूडेंट आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ये गैंग प्लैंक भी कहा जाता है इसको, गैंग प्लैंक मींस। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर ऑर्डर, दैट इज नॉट ऑर्डर कि हमने किसी काम के लिए ऑर्डर दे दिया। इट मीन्स ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस, यू कैन से इट अ सीक्वेंस। इट मीन्स कि इफ यू वांट अ गुड एंड इफेक्टिव वर्क एंड इफ यू वांट अ वेरी मैच्योर वर्क, तो आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में करनी पड़ेंगी। इट मीन्स कि इन ऑर्डर मैनर, फर्स्ट यू इफ देयर इज एन ऑर्डर, तो उस ही ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपको काम करना पड़ेगा। यू कांट डू द लास्ट वन इन फर्स्ट मोड एंड फर्स्ट वन इन लास्ट मोड। तो इफ यू डू दैट प्रोसेस कि लास्ट वन को आपने फर्स्ट वर्क में कर दिया, फर्स्ट वर्क को आपने लास्ट वर्क में कर दिया, तो आपका मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। मीन्स कि उसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये प्रोसेस, तो ये गलत हो जाता है। तो आप जब ऐसे वर्क करते हो तो ये आपके मैनेजमेंट को बहुत ही गलत वे में इफेक्ट करता है। बट इफ़ यू डू अ वर्क इन अ ऑर्डर्ड मैनर तो दैट इफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन इन वेरी गुड मैनर। तो वहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्लो अप करता है इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको ऑर्डर को माइंड में रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। नेक्स्ट वन इज योर इक्विटी। व्हाट इज मीन्स ऑफ इक्विटी स्टूडेंट? इक्विटी मीन्स की इक्वलाइजेशन। इट मीन्स की जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वहां पे सब इक्वलाइजेशन की मोड में हो, कि आपकी जो बॉयज हैं वो गर्ल्स और देयर द थिंकिंग ऑफ दैट बॉयज आर सुपीरियर एंड गर्ल्स आर नॉट सुपीरियर, तो ये नहीं होना चाहिए। एंड इक्वलाइजेशन ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयज़, तो उसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं करना चाहिए। तो जब आप इक्वलाइजेशन मोड में सबको ट्रीट करेंगे तो दे गेट मोटिवेटेड, दो वो अच्छे काम करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे। तो ये प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वन इज योर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इट मीन्स कि हमें जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको स्टेबल करना एक वर्क के ऊपर एटलीस्ट 6 मंथ के लिए, कि गो एंड डू द वर्क। हम उसको ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग देके उनको स्टेबल करते हैं कि डू द वर्क इन दैट कंडीशन। इट मीन्स कि जब तक वर्किंग प्रोसीजर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी स्टूडेंट, तब तक हमारा वर्किंग प्रोसीजर ठीक से नहीं होगा। मीन्स कि हमारे 2 महीने किसी ने 2 मंथ्स किसी ने मीन्स कि 2 मंथ्स किसी ने काम किया, आफ्टर दैट देन नेक्स्ट वन कम एंड डू दैट वर्क इन 1 मंथ, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जब तक हमारे लेबर स्किल्ड होंगे या जब तक हमारा प्रोसेस हाई मैनर पे जाएगा तब तक हमारा कोई ना कोई चेंज हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, आपको जो स्टेबिलिटी है वो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो दिस इज योर principle of management by Fayol. Next one is your initiative. What is the means of initiative student? Initiative means कि जो मोटिव आपको अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना होगा, that take a step, they take a first step. If they think कि that this work is good for our organization, तो उनको स्टेप लेने का पावर होना चाहिए, उनको मोटिवेशन होना चाहिए। तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ अ गुड थिंग और यू नो और यू थिंक दैट दिस इज़ अ गुड वर्क, तो आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, इनिशियल स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो इनिशिएटिव आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को, अपने लेबर्स को एक इनिशिएटिव टाइप से मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो वर्किंग प्रोसीजर को फर्स्ट स्टेप पे स्टार्टअप ले सकें। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज स्पिरिट दी कॉर्प्स। इसका मीन्स कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी आनी चाहिए। उनको ये समझ में आना चाहिए कि दे आर नॉट इंडिविजुअल, दे आर द फैमिली, दे आर without the help of other people they can't do the work in organization। तो स्पिरिट दी कॉर्प्स, तो वहाँ पे आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये भावना आनी चाहिए कोऑर्डिनेशन की। तो ये आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे फ्योल के। आई थिंक स्टूडेंट दिस वन इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू आर फ्री टू डू द कमेंट मी एंड I will try to serve you in better mode. Next one is your student Taylor's scientific management. Student Taylor is also an engineer और टेलर का फुल नेम क्या था? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनको हम FW टेलर के नाम पे से भी जानते हैं। एंड
और क्या जानते हैं, टेलर इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं उनको हम टेलर के नाम से जानते हैं, या फिर FW टेलर को हम साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें दिए हैं। सो कम एंड हैव अ लुक वन बाय वन। तो स्टूडेंट, टेलर का पहला रूल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इट मीन्स साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स कि इन्होंने बताया कि जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे हैं दैट इज बेस्ड ऑन साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स जो ओल्ड प्रोसीजर हमारे चले आ रहे हैं उनके ऊपर हमें काम नहीं करना है, हमें नया वर्क करना है, नया एक्सपेरिमेंट करना है। व्हेन वी डू द न्यू वर्क, न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू एक्सरसाइजेस, सो वी कम टू द न्यू थिंग्स, न्यू मैनेजमेंट पॉलिसीज। तो उन्होंने बोला कि जो हमारा मैनेजमेंट है दैट इज द साइंस, हम साइंस के रूप में उसको वर्क कर सकते हैं, नॉट फॉर रूल ऑफ द थंब। जो पुराने टाइप से जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं उनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। सो दिस इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट उनका था स्टूडेंट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उन्होंने ये बताया कि इन योर ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ एनवायरनमेंट ऑफ हार्मनी, मीन्स कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके लेबर्स हैं, उनके बीच में, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में हार्मनी का कंडीशन होना चाहिए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। देन ओनली योर मैनेजमेंट वर्क इज गुड इन फंक्शन। अगर आप डिस्कॉर्ड में रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, तो योर मैनेजमेंट नॉट बीन एफिशिएंट और इफेक्टिव इन गुड मैनर। तो उन्होंने बताया कि जो भी वर्कर्स हमारे, जो भी एम्प्लॉयज वहां पे वर्क करते हैं, उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो इसका मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट? इट मीन्स कि उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज, जितने भी हमारे वर्कर्स काम करते हैं, उनके अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग आनी चाहिए। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे स्पिरिट द कॉर्प्स था, उसी तरीके से कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजिंग मीन्स कि जो हम करते हैं वो हमारे इंडिविजुअल का वर्क नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए वर्क नहीं करते हैं, हम सबके साथ में मिलकर वर्क करते हैं। हमारे जितने भी वर्कर्स, जितने भी लेबर्स, जितने भी एम्प्लॉयज अपने इंडस्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, दे आर इन द कोऑपरेशन मोड। उनको ये समझना चाहिए कि वी आर अ फैमिली, हम जो भी वर्क करेंगे, वी डू द वर्क इन बेटर मोड इन गेट टुगेदर। तो उनको ये चीज आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। आपको सिखाना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, इंडिविजुअलाइज्म की तरफ नहीं चलना पड़ेगा। इट मीन्स कि उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आई एम द ओनर और आई एम द पर्सन हु कैन डू द वर्क। तो इस तरह की ओनली आई एम द पर्सन हु कैन डू द ओनली वर्क, तो इस तरह की फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। तो आई थिंक स्टूडेंट की आपको क्लियर आउट हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन to his or her greatest efficiency and prosperity। इट मीन्स कि उनका ये मानना था कि कोई भी वर्कर है, कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन सभी की एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनके वर्किंग प्रोसीजर की, उनके ग्रेटेस्ट, उनकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक। मीन्स कि जितना वो एफिशिएंसी अपना दे सकते हैं उस एफिशिएंसी तक उनका डेवलपमेंट होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। उनको हमें उनके ऊपर फालतू के वर्क नहीं इम्पोज करने चाहिए और उनको दबा के हमें नहीं रखना चाहिए। मीन्स कि ही वांट टू और सी वांट टू ट्राई टू गेट अ बेटर कंडीशन और बेटर थिंग टू अस, और हमने बोला कि नो यू आर सबऑर्डिनेट एंड यू आर नॉट एबल टू गिव अस सजेशन। तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए, उनके कहने के अकॉर्डिंग था। और उनकी दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ उनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये प्रोसीजर था हमारे FW टेलर के। तो नेक्स्ट वन इज योर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी ईच एंड एवरी पर्सन के डेवलपमेंट को क्लियर करने के लिए उन्होंने ये रूल बनाया, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इसमें कैसे वर्क किया जाता है उन्होंने बताया कि हर पर्सन की एफिशिएंसी को आपको ग्रेट मूवमेंट पे लाने के लिए, हर पर्सन की एफिशिएंसी को आपको एक अच्छी कंडीशन में लाने के लिए उनको वर्क को डिवाइड कर देना पड़ेगा। वो जैसा वर्क चाहते हैं या इन विच वर्क दे आर मोर गुड, तो उनको वैसा वर्क दे दीजिए। तो इस पे बेस है ये हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। आइए देखते हैं, कम एंड सी व्हाट इज दिस। सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज योर प्लानिंग इंचार्ज। मीन्स कि फंक्शनल फोरमैनशिप में उन्होंने ये बताया कि जो हमारा वर्किंग प्रोसीजर है, जो हमारा
वो प्रोडक्शन है और जो हमारी प्लानिंग है, दैट प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन जो है, मींस कि जो प्लानिंग और जो एग्जीक्यूशन जो है यानी प्रोडक्शन जो है, दैट आर डिफरेंट थिंग। उनको अलग अलग रखना पड़ेगा, उनको अलग अलग करके हमें अलग अलग पीपल से, डिफरेंट पीपल से हमको वर्क लेना पड़ेगा। तो उन्होंने इसको डिफरेंट मोड में डिवाइड कर दिया, फंक्शनल फोरमैनशिप को 2 मोड में डिवाइड कर दिया और उन 2 मोड में देयर आर 8 डिफरेंट वर्क्स। तो आइए हम देखते हैं व्हाट आर दीज 8 डिफरेंट वर्क। तो फर्स्ट इज प्लानिंग इंचार्ज। हमें प्लानिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इज आर रूट क्लर्क। व्हाट इज रूट क्लर्क? रूट क्लर्क मींस दैट पर्सन हु चेक्स द रूट और इनिशियल स्टेज ऑफ द डूइंग ऑफ पीपल्स। मीन्स कि वो सबसे पहले जो वर्कर्स, जो हमारे पीपल्स जो हैं प्रोडक्शन में, वो स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारे रूट क्लर्क्स होते हैं, वो उसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क स्टूडेंट? इट मीन्स कि जो हमारे रूट क्लर्क में जो हमारे वर्कर्स, जो हमारे लेबर्स काम करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि दैट डू द वर्क इन दिस मैनर और डू द वर्क इन दिस कंडीशन। तो उनको वर्किंग प्रोसीजर को गाइड करने के लिए हमारे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने मीन्स कि हमारे FW टेलर ने ये मैनेजमेंट की पॉलिसी बनाई कि हमें वर्किंग को डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर देना है, मैनेजमेंट को डिफरेंट हैंड्स में डिलीवर्ड कर दीजिए एंड यू गेट द बेटर रिजल्ट। तो यहाँ पे रूट क्लर्क आया, फिर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आया। नेक्स्ट वन इज योर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इट मीन्स कि जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है, वो कॉस्ट शीट और टाइम शीट आपकी जो वर्किंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं पर्सन, उनकी टाइम एंड कॉस्ट शीट को डेवलप करता है, उनके लिए टाइम और कॉस्ट शीट बना के देता है, दैट वर्क इन दिस टाइम और इन दिस कॉस्ट ओनली। तो ये एक हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट का तरीका है। नेक्स्ट इज शॉप डिसिप्लिनेरियन। शॉप डिसिप्लिनेरियन मतलब एक ऐसा पर्सन होगा जो सारी के सारे वर्किंग प्रोसीजर को गाइड करता रहेगा, कंट्रोल करता रहेगा, या उसके ऊपर कंट्रोल देखता रहेगा कि दैट ऑल वर्क इज डूइंग इन द गुड मैनर और नॉट। तो उसको डिसिप्लिन मैनर में हो रहा है कि नहीं। तो एक पर्सन हमारा ये होगा। तो ये हमारे प्लानिंग इंचार्ज में, जो हमारे प्लानिंग इंचार्ज में होते हैं, देयर आर रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और दैट इज शॉप डिसिप्लिनेरियन। तो ये 4 हमारे वर्क करते हैं हमारे लिए। तो आई थिंक स्टूडेंट की आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वन इज योर प्रोडक्शन इंचार्ज। अब हम जब प्रोडक्शन इंचार्ज में आते हैं तो देयर आर ऑल्सो अ 4 पर्सन। फर्स्ट वन इज गैंग बॉस। हु इज गैंग बॉस? ये आपके जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वर्किंग करने के या प्रोडक्शन करने के, उन प्रोडक्शन करने के इक्विपमेंट्स को एकदम रेडी रखता है। मींस की वर्किंग प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बी रेडी रहता है हमारा गैंग बॉस। तो नेक्स्ट वन इज योर स्पीड बॉस। ये हमारा चेक आउट करता है कि हमारी जो भी वर्किंग प्रोसीजर है, जो हम वर्क कर रहे हैं और जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज इन गुड स्पीड और गुड मैनर और नॉट, कि वो ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत धीमे वर्क कर रहे हैं, बहुत तेज वर्क कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इन सारी चीज़ों को फॉलो अप करने के लिए वी हैव अ स्पीड बॉस। नेक्स्ट वन इज योर रिपेयर बॉस। व्हाट इज रिपेयर बॉस? जब हम वर्किंग करेंगे, जब हम प्रोडक्शन करेंगे, जब गैंग बॉस हमारे लिए इक्विपमेंट्स लेके तैयार रहते हैं, तो देयर जो मशीन हमारी फंक्शनिंग करेगी तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो उस मशीन की फंक्शनिंग को देखने के लिए हमारे रिपेयर बॉस होते हैं। इफ देयर इज एनी फॉल्ट, एनी प्रॉब्लम, तो वो फिर उसको हैंडल करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर इंस्पेक्टर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर मीन्स दैट लाइक अ डिसिप्लिनेरियन इधर था, उसी तरह से हमारा इंस्पेक्टर है। ही सी ऑल द term and condition, all the working, all the procedure of these all production in charge, और अगर कोई दिक्कत होती है तो he manage all the things। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वन, उसके बाद का प्रोसीजर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क? इसका मीन्स ये हो गया कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम उसमें जो मैनेजमेंट करते हैं, तो हमारी वर्किंग प्रोसीजर को बहुत स्टैंडर्डाइजेशन होना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वे में करना पड़ेगा। इट मीन्स कि व्हेन आवर वर्क इन स्टैंडर्ड मैनर, तो दैट वर्क गिव्स अ ग्रोथ टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीपल्स को ग्रोथ देता है जब वो एक स्टैंडर्ड मैनर में, एक इफेक्टिव मैनर में हम वर्क को फॉलो करते हैं और हम वर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन जो होता है, सिंप्लीफिकेशन इज यू नो कि सिंप्लीफिकेशन में जब वर्क होता है तो पीपल डू द वर्क इन गुड मैनर, कि वो सिंप्लीफाइज मैनर में, स्मूथ मैनर में वर्क होता जाता है। देयर इज नो प्रॉब्लम टू कंडक्ट द वर्क। तो आई थिंक स्टूडेंट की ये आपको क्लियर आउट
हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर मेथड टू स्टडी। अब हम क्या करते हैं इन आर मैनेजमेंट फंक्शन और इन आर वर्किंग प्रोसीजर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर हम क्या करते हैं, दिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में वी जस्ट स्टडी द थिंग्स, तो मीन्स कि हम मेथड टू स्टडी करते हैं कि कैसे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है। तो जब हम स्टडी करते हैं, व्हेन वी डू द स्टडी और व्हेन वी ऑब्जर्व द थिंग्स, तो वी कम टू नो द व्हाट रिजल्ट्स। हम उसके बाद रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं, एक्सपेरिमेंट्स पे पहुंचते हैं, एंड आफ्टर रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स वी do make the new policies or we make the new principles for the doing or conduct of the work in our organization to effective मैनेजमेंट। तो हमारे मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ स्टडी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम नया प्रिंसिपल और नए लॉ को इंक्लूड करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट वन इज योर मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स हम ये वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क हो रहा है दैट इज इन गुड टाइम और नॉट गुड मैनर में हो रहा है कि नहीं, सही टाइम पे हो रहा है कि नहीं, इफ देयर द वर्क इज टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम या कम टाइम में हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारे के सारे प्रोसीजर्स को हम मोशन स्टडी में स्टडी करते हैं। देन वी इम्प्लीमेंट अ न्यू पॉलिसीज ऑन द वर्किंग प्रोसीजर। फिर आता है टाइम स्टडी। हम टाइम को स्टडी करते हैं, सारी चीज़ों को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। आफ्टर स्टडिंग ऑल द थिंग्स वी जस्ट मेक द न्यू पॉलिसीज और वी जस्ट इंप्रूव द पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट दैट इन आवर वर्किंग प्रोसीजर। तो ये एक अच्छे मैनेजमेंट, ये एक गुड मैनेजमेंट का पूरा चांसेस होता है कि हमारे जो अच्छे मैनेजमेंट है, गुड मैनेजमेंट है, इन सारी स्टडीज फंक्शंस को कंडक्ट करने से क्लियर अप होते हैं और अच्छा फंक्शन, अच्छा मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वन इज फैटिग स्टडी। व्हाट इज मीन्स ऑफ फैटिग स्टडी स्टूडेंट? अब फैटिग स्टडी मीन्स दैट कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम करते करते थक जाते हैं, तो उनके लिए एक हमारा लंच टाइम करना चाहिए। उस लंच टाइम में एक इफेक्टिव लंच टाइम होना चाहिए, एक एफिशिएंट लंच टाइम होना चाहिए। मीन्स कि ऐसे जब उनको लंच मिलता है, जब उनको ब्रेक मिलता है, तो आर एम्प्लॉयज गेट चार्ज फॉर डूइंग द वर्क इन बेटर मोड, तो उनको एक मोटिवेशन मिल जाता है, तो वो फैटिग स्टडी। फिर नेक्स्ट वन इज योर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। व्हाट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम स्टूडेंट? इस मीन्स कि स्टूडेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर्स। एक वर्कर होते हैं हु गिव अ गुड एफिशिएंट गुड वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, हाई मोड पे वो आपके यहाँ काम करते हैं, एंड सेकेंड वन बहुत लेजी होते हैं, वो ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। तो डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम यही आपको बताता है कि जो हाई मोड पे काम करते हैं उनको हाई सैलरी दीजिए, और जो लो मोड पे काम करते हैं उनको लो वेजेस दीजिए, जिससे कि जो लो वेजेस वाले हैं दे गेट मोटिवेटेड कि अरे यार वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा सैलरी या ज़्यादा वेजेस मिल रही है, तो अब हम भी अच्छा काम करेंगे। तो दिस इज अ इफेक्टिव पार्ट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। आई थिंक स्टूडेंट की क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर मेंटल रेवोल्यूशन, यानी कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, उनकी मेंटल रेवोल्यूशन होनी चाहिए। इट मीन्स कि उनको सोचने समझने की, उनको खुद से वर्क करने का, खुद से वर्क को कंडक्ट करने का उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो कोई भी वर्क करें तो प्रेशर में नहीं करें। जब व्हेन पीपल डू द वर्क इन प्रेशर तो दे डू द ऑलवेज रॉन्ग थिंग्स। तो मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे हैं। तो आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का फुल रिव्यू समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इनको शॉर्ट मैनर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। स्टूडेंट इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम so do the comment and I'll try to serve you in better mode. So till then thank you student, मिलते हैं अब हम अपने नए क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए रिवीजन मोड के साथ। So thank you student.